Assalamu alaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Student, today our topic is chemical equilibrium. Chemical equilibrium. Chapter number 9, class 10th. Class 10th. First of all, we want to introduce about chemical equilibrium. Basically, what is chemical equilibrium? Why we study chemical equilibrium, and what is the importance of chemical equilibrium? To know about chemical equilibrium, first of all, you have knowledge about chemical reaction. Chemical reaction. Chemical reaction. What is chemical reaction? Transformations of one substance into another substance is called chemical reaction, or the reactions of reactant with each other and productions of a new product is called chemical reaction. There are two types of chemical reactions. First one is complete chemical reaction. Complete chemical reaction. Second one is reversible chemical reaction. We can name the complete reaction as irreversible chemical reaction. Irreversible, complete, irreversible reaction. What is complete reaction? Complete reaction is one in which reactants react with each other and convert into product. It means there no reactant left after completion of reactions, in only and only products are found. For example, A plus B are any two types of reactants that react with each other and convert into two types of products, C and D. After completions of this reaction, in our reaction container, there will be no reactant A and B, but we have only C and D products. Such types of chemical reactions are called complete chemical reaction. And second one is reversible chemical reaction. What is reversible chemical reaction? A reaction in which any two types of reactant react with each other. Reactants react with each other and make a product, and products also react with each other at the same time and make a reactants. For example, we have two types of reagents. A and B react with each other and make C plus D. In this reaction, C plus D also react with each other and make the reactants A and B. But here in this reaction, complete reactions, there is no reaction between C and D. That's why after completions of reactions, there is no reactants A and B. But in these types of chemical reactions means reversible reaction, A and B react with each other and make C and D product, and this C and D react with each other A and B simultaneously. अब इसकी मज़ीद तफसील अब हम जब रिवर्सिबल रिएक्शंस और डायनामिक इक्विलिब्रियम में जाएंगे तो हम आपको बताएंगे, लेकिन सबसे पहले अब जब आपको ये मालूम हो गया कि केमिकल रिएक्शन क्या है, इसकी दो एग्जाम कौन कौन सी हैं,
इन दो एग्जाम्स में क्या क्या हो रहा है, और इस रिएक्शन को हमने यहाँ आपको दिखाया सिंगल एरो से शो किया है, इस रिएक्शन को हमने यहाँ आपको दिखाया डबल एरो से शो किया है। अच्छा स्टूडेंट, आपको ये तीन बातें समझ में आ चुकी होंगी कि केमिकल रिएक्शन क्या है, इसकी दो टाइप्स कौन कौन सी हैं, और इसकी जो है सेकंड टाइप कौन सी है, और हम कंप्लेन रिएक्शन को किस तरह लिखते हैं, और कंप्लेन रिएक्शन में क्या हो रहा है, रिवर्सिबल रिएक्शन में को हम किस तरह लिखते हैं, और रिवर्सिबल रिएक्शन में क्या हो रहा है। अब ये बात समझने के बाद मैं आपको केमिकल इक्विलिब्रियम की इंपॉर्टेंस के बारे में बताना चाहूँगा। इन इंडस्ट्रीज में, जब हम इंडस्ट्रीज में हमारी रोज़मर्रा ज़रूरत की के केमिकल्स या चीज़ें बनाते हैं, तो वो केमिकल सिंगल स्टेप ऑफ रिएक्शन में हासिल नहीं होता है, मल्टी स्टेप्स इन्वॉल्व होती हैं। इस स्टेप्स के दौरान जो हमें प्रोडक्ट्स मिलते हैं, इसी दौरान केमिकल इक्विलिब्रियम इन्वॉल्व होता है। केमिकल इक्विलिब्रियम इन्वॉल्व होता है। जब केमिकल इक्विलिब्रियम इन्वॉल्व होता है तो लाजमी बात है केमिकल इक्विलिब्रियम तुम्हारी प्रोडक्ट्स की यील्ड में, जो आप रिएक्शन के बाद, रिएक्टेंट के रिएक्शन के बाद जो प्रोडक्ट बना रहे हैं, इसके यील्ड में केमिकल इक्विलिब्रियम की वजह से फर्क आता है। मिसाल के तौर पे हम कुछ रिएक्शंस को मखसूस कंडीशन में इसकी यील्ड 100% भी ला सकते हैं। अगर हम इसको कंडीशन न दें, तो हमारी यील्ड कम से कम 10% या इससे भी कम हो सकती है। तो जब हम केमिकल इक्विलिब्रियम के बारे में स्टडी करेंगे, इसके प्रिंसिपल्स को समझेंगे, तो हम इसकी इम्पोर्टेंस को समझेंगे। जब हम इसकी इम्पोर्टेंस को समझेंगे तो हम इजीली अपने प्रोडक्ट्स के यील्ड्स को बढ़ा सकते हैं। मिसाल के तौर पे मैं आपको कुछ एग्जांपल देता हूँ। मसलन एमोनिया है, सल्फ्यूरिक एसिड है, इन दोनों की सिंथेसिस में केमिकल इक्विलिब्रियम इन्वॉल्व होती है। तो अब हमें इंडस्ट्रियल लेवल पे, जब हम लार्ज स्केल में हमें ये बनाना होता है, तो हमें प्रिंसिपल ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम को समझना होगा। अगर हम इसको न समझेंगे तो हम कभी भी इंडस्ट्रीज में लार्ज लेवल पे एमोनिया या सल्फ्यूरिक एसिड नहीं बना सकेंगे। वजह यही है कि यहाँ पे केमिकल इक्विलिब्रियम इन्वॉल्व होता है, और थोड़े प्रोडक्ट बनने के बाद ही हमारी ये स्टेट हालत, ये केमिकल इक्विलिब्रियम की स्टेट आती है, जिसकी वजह से हम अपना यील्ड नहीं बढ़ा पा सकते हैं। That's why we should know about the मसलन मिसाल के तौर पे हम एमोनिया जो है एवरी ईयर जो है हम मल्टी मिलियन टन्स बनाते हैं। कैसे बनाते हैं? केमिकल इक्विलिब्रियम के रूल्स को समझने के बाद बनाते हैं। जैसे हम अभी आगे पढ़ेंगे लिचटेरियल प्रिंसिपल, इसकी क्या अहमियत है, कैसे हमने प्रोडक्ट को बढ़ा दिया है। तो स्टूडेंट, अभी इसकी इम्पोर्टेंस इतना ही काफ़ी है कि केमिकल इक्विलिब्रियम का इम्पोर्टेंस क्या है। अभी हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक है वो रिवर्सिबल रिएक्शन और डायनामिक इक्विलिब्रियम है। रिवर्सिबल रिएक्शन और डायनामिक इक्विलिब्रियम। देखें स्टूडेंट, मैंने आपको 2 टाइप्स बताई थी। इसमें एक मैंने आपको क्या बताई थी, रिवर्सिबल रिएक्शन एंड डायनामिक इक्विलिब्रियम। रिवर्सिबल रिएक्शन मैंने आपको बताया कि रिवर्सिबल रिएक्शन क्या होता है,
और डायनामिक इक्विलिब्रियम क्या होता है। अब इसकी हम मजीद एक्सप्लेनेशन आपको करेंगे। देखिए, सबसे पहले आपको ये देखना चाहिए कि इक्विलिब्रियम दो किस्म की हैं। एक फिजिकल है, फिजिकल इक्विलिब्रियम है, और दूसरी हमारे पास जो इक्विलिब्रियम की टाइप है वो केमिकल इक्विलिब्रियम है। अगर मैं आप लोगों को फिजिकल इक्विलिब्रियम की एग्जांपल देना चाहूं तो हमारे पास सबसे बेस्ट जो एग्जांपल है वो कन्वर्जन ऑफ लिक्विड वाटर इनटू वेपर्स। ये बेहतरीन हमारे पास फिजिकल इक्विलिब्रियम की एग्जांपल है कि जब वाटर का टेम्परेचर बढ़ाया जाता है, मीन इसको हीट किया जाता है, तो वाटर किस में कन्वर्ट होता है, वेपर्स में कन्वर्ट होता है। और वेपर्स जो है दोबारा जब ऊपर जब के ठंडे होते हैं तो ये कंडेंस होते हैं, जिसके नतीजे में ये दोबारा वाटर के बड़े ड्रॉप्स में कन्वर्ट होते हैं और रेन की शक्ल में पानी जमीन पे गिरता है। ये फिजिकल इक्विलिब्रियम की एक बेस्ट एग्जांपल है। इसी तरह केमिकल इक्विलिब्रियम जो है, इसकी एग्जांपल को समझने के लिए हमें रिवर्सिबल रिएक्शन को समझना पड़ेगा। और ये देखें, इसमें हमने देखा कि ये डायनामिक था, ये प्रोसेस कंटिन्यूअस था ना, वाटर का कन्वर्ट होना वेपर में, वेपर का कन्वर्ट होना दोबारा ये जो है लिक्विड में, ये एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है। इसको हम कहते हैं डायनामिक इक्विलिब्रियम। बिल्कुल इसी तरह केमिकल रिएक्शंस जो हैं हमारे पास, रिवर्सिबल रिएक्शन जो हैं वो भी क्या है, रिवर्सिबल रिएक्शन जो हैं, रिवर्सिबल रिएक्शन जो हैं वो भी हमारे पास क्या है, डायनामिक है, डायनामिक है। इसकी मिसाल में आपको अभी समझा रहा हूं। मसलन हमारे पास दो रिएक्टेंट हैं, A प्लस B आपस में रिएक्ट करते हैं। रिएक्शन के नतीजे में हमारे पास 2 प्रोडक्ट्स हासिल होते हैं, C प्लस D। ये बात रिवर्सिबल रिएक्शन वाली बात सबसे पहले एक साइंसदान 1830 फ्रेंच साइंसदान ने ये इरिवर्सिबल रिएक्शन दरियाफ्त किया था। इससे पहले मालूम नहीं थी। देखने में तो ऐसा लग रहा था कि ये इरिवर्सिबल जो रिएक्शन है ये कंप्लीट हो गई है। हकीकत में जब ये देखा गया कि इरिवर्सिबल रिएक्शन कंप्लीट होने के साथ साथ ये जारी भी रहती है, कंटिन्यूअस भी रहती है, इसलिए इसको डायनामिक इक्विलिब्रियम कहते हैं। मसलन मिसाल के तौर पे ए भी रिएक्ट कर रहा है, C प्लस डी बना रहा है, और C प्लस डी रिएक्ट करके A प्लस बी बना रहा है, और इसमें एक वक्त ऐसा आता है, ये प्रोसेस साइमल्टेनियसली हो रहा है, यानी C और D का आपस में रिएक्ट करके A और B बनाना, A और B का रिएक्ट करके C और D बनाना, ये एक साइमल्टेनियस प्रोसेस है। हाँ, अलबत्ता यहाँ पे एक बात है कि वक्त के साथ साथ रेट ऑफ रिएक्शन बिटवीन रिएक्टेंट एंड रेट ऑफ रिएक्शन बिटवीन प्रोडक्ट्स जो है वो चेंज होता है। इनिशियली रेट ऑफ रिएक्शन बिटवीन रिएक्टेंट इंक्रीज होगी, जो वक्त गुजरता जाएगा ये डिक्रीज होगा, और इनिशियली इसका जो है आपस में प्रोडक्ट का रिएक्शन डिक्रीज होगा, कम होगा। जो वक्त बढ़ता जाएगा इन दोनों के दरमियान जो रिएक्शन हो रही है वो रेट भी बढ़ जाएगी, रेट ऑफ रिएक्शन यहाँ बढ़ जाएगी। एक वक्त ऐसा आ जाएगा कि इक्वल अमाउंट में ही A प्लस बी C प्लस डी में जाएंगे और C प्लस डी A प्लस बी में जाएंगे। इस कंडीशंस को, इस स्टेट को, जिसमें जो है तुम्हारे पास A प्लस बी का C प्लस डी में कन्वर्ट होने को हम कहते हैं फॉरवर्ड रिएक्शन। इसको क्या कहते हैं, फॉरवर्ड रिएक्शन। और C प्लस डी यानी प्रोडक्ट का आपस में रिएक्शन करके दोबारा रिएक्टेंट बनाने को हम कहते हैं रिवर्स रिएक्शन और बैकवर्ड रिएक्शन। स्टूडेंट, हम एक एग्जांपल से इस बात को समझाने की कोशिश करेंगे। वो बात ये है कि हमारे पास सल्फर डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन की हम रिएक्शन करवाएंगे। ये एक रिवर्सिबल रिएक्शन की हम एग्जांपल दे देंगे आप लोगों के बुक में।
3 एग्जांपल दिए गए हैं सल्फर। सबसे पहले हम पहले के बारे में डिस्कस करेंगे कि सल्फर ऑक्साइड और ऑक्सीजन जब आपस में रिएक्शन करते हैं तो नतीजे में हमारे पास सल्फर ट्राइऑक्साइड बनता है। सल्फर ट्राइऑक्साइड बनता है और ये जो सल्फर ट्राइऑक्साइड है ये दोबारा डिकम्पोज होकर सल्फर डाइऑक्साइड में कन्वर्ट होता है। इसको हम बैलेंस करेंगे। फर्ज करें हमारे पास यहाँ पे ऑक्सीजन 3 है, तो हमने यहाँ पे हमारे पास ऑक्सीजन यहाँ 3 है, हमने यहाँ जो है इसको बैलेंस किया। और इनिशियली जब ये हमारे रिएक्टेंट्स हैं, ये दोनों हमारे क्या हैं, रिएक्टेंट्स है, ये हमारा प्रोडक्ट है। अब इसको हम ग्राफिकली रिप्रेजेंट करें तो कुछ इस तरह होगा। फर्ज करें ये हमारा टाइम है, ये हमारा कंसंट्रेशन है। इनिशियली ये चीज तो 0 होगा ना, ये ग्राफ के 0 पे होगा। इनिशियली ये चीज क्या होगा, सल्फर ट्राइऑक्साइड क्या होगा, इसका कंसंट्रेशन 0 होगा क्योंकि रिएक्शन अभी शुरू नहीं हो गया। जो वक्त के साथ साथ रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगा और एक वक्त ऐसा आएगा कि इक्विलिब्रियम अटेन होने के बाद रेट ऑफ कन्वर्जन क्या होगा, कांस्टेंट होगा। इसी तरह इनिशियली तुम्हारे पास जो है वो ऑक्सीजन है और सल्फर डाइऑक्साइड है, इनका कंसंट्रेशन एक वक्त के साथ साथ कम होगा, एक वक्त ऐसा आएगा इसका कंसंट्रेशन भी क्या होगा, कांस्टेंट होगा। इसी तरह ऑक्सीजन का भी एक वक्त बढ़ेगा, एक वक्त ऐसा आएगा, एक कंसंट्रेशन होगा। ये तुम्हारा सल्फर डाइऑक्साइड है, ये तुम्हारा सल्फर डाइऑक्साइड है, ये तुम्हारा ऑक्सीजन है। तो बेटे इसका मतलब ये हो गया कि वक्त के साथ साथ रेट ऑफ रिएक्शन between reactant and rate of decomposition or rate of reaction between product जो होती है वो चेंज होती है। और आखिरकार एक वक्त ऐसा आता है कि इन तीनों का जो है रेट ऑफ रिएक्शन जो है एक रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का एक दूसरे में कन्वर्ट होना, यानी इसका इसमें कन्वर्ट होना, इसका डिकम्पोज होगी इनमें कन्वर्ट होना, ये एक कांस्टेंट आएगा। यानी इक्वल अमाउंट में ये इसमें और ये इसमें कन्वर्ट होगा और लगेगा हमें ये कि रिएक्शन कंप्लीट हो गई है और स्टॉप हो गई है। कंप्लीट वाली तो हो चुकी होगी, स्टॉप नहीं होगी। हकीकत में ये स्टॉप नहीं हुई है, ये जारी है हमारे पास रिएक्शन। और जब हम ये चीज करते हैं, इसमें इंडस्ट्री में करते हैं, तो इनको बाकायदा हम कैटलिस्ट देते हैं, कैटलिस्ट V2O5 और खास कंडीशन है 400 एटमॉस्फेरिक प्रेशर और 250 हमारे पास जो है डिग्री सेंटीग्रेड, 400 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर है और 2 एटमॉस्फेरिक प्रेशर है इसका। अब देखें स्टूडेंट, यहाँ एक हालत आ गया है, एक स्टेट आ गया है जिसमें कन्वर्जन ऑफ रिएक्टेंट इनटू प्रोडक्ट एंड प्रोडक्ट इनटू रिएक्टेंट सेम है। मीन्स हम ये कह सकते हैं एक केमिकल रिएक्शन में एक ऐसी हालत, स्टेट का नाम है केमिकल इक्विलिब्रियम, एक ऐसी स्टेट का नाम है जिसमें रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। इस स्टेट को हम क्या नाम देते हैं स्टूडेंट्स, इसको हम केमिकल इक्विलिब्रियम कहते हैं। हमारा बेसिक यहाँ इसमें सेलो जो था वो केमिकल रिवर्सिबल रिएक्शंस को डायनेमिक इक्विलिब्रियम की टर्म में समझना था। इसी तरह यहाँ जो मैंने एग्जांपल बताई हैं, इसी तरह हाइड्रोजन जो है तुम्हारे पास मुख्तलिफ कंडीशंस और कैटलिस्ट की मौजूदगी में नाइट्रोजन हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करके एमोनिया बनाएगा, नाइट्रोजन ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनाएगा। ये भी एग्जांपल है स्टूडेंट, आप ये चीज़ बुक में गौर से देखें। तुम्हारा नाइट्रोजन हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करता है, ये एक रिवर्सिबल रिएक्शन है जिसमें एमोनिया बनता है। इसकी जो कंडीशंस हैं तुम्हारे पास जो है वो कैटलिस्ट आयरन है, 400 डिग्री सेंटीग्रेड है, टेम्परेचर 400 डिग्री सेंटीग्रेड है और प्रेशर जो है 200 एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। इसी तरह तुम्हारे पास नाइट्रोजन ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनाता है। इज इट ओके?
इसी तरह तुम्हारे पास फिजिकल इक्विलिब्रियम की एक एग्जांपल में जो बताना चाहूँगा वो फिजी ड्रिंक्स हैं, जो कि आपकी ट्रिक बिट्स में बताया गया है। व्हाट फिजी ड्रिंक्स, ऐसे ड्रिंक्स जिसमें लिक्विड के अंदर जो हैं गैसेस क्या हैं, डिजोल्व फॉर्म में है, इनको फिजी ड्रिंक्स कहते हैं। गैस किस में डिजोल्व हैं, वाटर नहीं सॉरी लिक्विड के अंदर डिजोल्व हैं, लिक्विड के अंदर डिजोल्व हैं, इनको हम कहते हैं फिजी ड्रिंक्स। कार्बोनेटेड ड्रिंक्स को फिजी ड्रिंक्स कहते हैं। मिसाल के तौर पे आप जो पेप्सी पीते हो, कोका कोला पीते हो, वो तुम्हारे लिक्विड के अंदर डिजोल्व है। प्रेशर फॉर्म में जब आप इसको बोतल के अंदर बंद करते हो तो वो जो गैस तुम्हारे पास है ये अंदर डिजोल्व होती है। ये तुम्हारा फॉरवर्ड रिएक्शन है। जो ही आप बोतल खोल देते हैं तो गैस जो है बबल की फॉर्म में निकल रहा है, ये तुम्हारा बैकवर्ड रिएक्शन है, बैकवर्ड रिएक्शन है। स्टूडेंट मैं आपको कुछ असाइनमेंट देना चाहता हूं जो कि आप सोल्व करके मुझे ईमेल करें या ईमेल करें, जो कि हमारी कॉलेज की तरफ से उस वक्त कैडेट कॉलेज इस्लामाबाद की तरफ से आप लोगों को मुहैया किया जाएगा। और कुछ असाइनमेंट देता हूं, इसी पे आप सेंड करें और अपना नाम, रोल नंबर और क्लास के साथ बाकायदा सेंड करें। हम इवेल्युएट करेंगे और चेक करेंगे कि आप लोग हमारी लेक्चर को कितना समझ रहे। हमारा टुडे का जो असाइनमेंट होगा वो मसलन तुम्हारा नाइट्रोजन रिएक्शन कर रहा है हाइड्रोजन के साथ, जिसके नतीजे में तुम्हारे पास एमोनिया बनता है, 2NH3 बनता है। तो यहाँ जो है हमारे पास राइट फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड और रिवर्स रिएक्शन लिखना है, क्वेश्चन नंबर 1। सेकंड जो है आप लोगों के पास दूसरा जो है मसलन नाइट्रोजन ऑक्साइड रिएक्शन करता है तुम्हारा किसके साथ, नाइट्रोजन ऑक्साइड रिएक्शन कर रहा है तुम्हारे ऑक्सीजन के साथ, जिसके नतीजे में नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनता है, NO2 बनता है। इसमें बैक और फॉरवर्ड रिएक्शन लिखें। तो आज हम अपनी लेक्चर को ख़त्म करते हैं स्टूडेंट। अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखें और नेक्स्ट टाइम हम मिलेंगे।